So guys, good morning. Time to go back to Hyderabad, and this is the Kankuna railway station, which I have to pick up my connecting train from here to Madgaon early in the morning. So this is a very quiet railway station here, and this is roughly it would take me about an hour to reach Kankuna. So a small little shop here, and they have the train. This is the tracks. That's the road over there. So let's see on the 30th morning. Uh, I have a train here, but it's a walking distance about almost a kilometer from me, from my staycation. But it's quite convenient. But there's only one train which reaches in the morning. Then after there are a couple of other trains which reaches from here to Madgaon around 12:30. So, but for me it's more convenient to reach here at about 6:30 in the morning. So let's see, and I'll post you and keep you all updated. Till then, stay tuned. These are beautiful lush green hilly area just near the railway station at Kankona. I just stay beyond, just before that. Uh, if you can see the small red building over there, red, my service apartment is there. So I just took a walk down the side to come and have a look at the station here. This is Kankuna railway station. If you can see that building over there, that the red building is, that's where I stay, in that particular area. So guys, good morning. आज अभी सफ़र के लिए तैयारी करना है. Planning to complete my holiday in Goa, and it's time to get back to Hyderabad. So almost done my packing, and a few little bit things, I need to just check it out. So hopefully, I guess by the time I reach my train, which is from Margao at 9:30 in the morning. Of course, tomorrow I'll have to leave at 5 in the morning from here to catch my connecting transit train from Kankona. So it was good being here in this place, and spent quality time amongst beauty and nature. So let's see, plan out maybe again sometime, not sure. That's my packing has already been complete, so I'll just show you. I've completed my packing. I have another bag to carry, so good to go for tomorrow. Till then, let me see what move I can, if I need to pick up anything. I'm not too sure, but I don't think I'm going to carry anything much with me, because most of the stuff you get in Hyderabad. Yeah, so if I plan to add up something more, then maybe I'll think about it. So let's see how it goes. कि भाई आज का दिन ऐसा निकल गया कि सुबह में जो उठा मैंने जल्दी, और सोच
सोचा थोड़ा बहुत पैकिंग कर लूँ। अभी आज का दिन जो है तैयारी करने का है सुबह का सफ़र के लिए। कल सुबह में जो है निकलना है 30 तारीख को। तो आज कहीं निकला नहीं, मैं बस थोड़ा लंच करने गया। जहाँ पर रह रहा हूँ यहाँ एक बहुत अच्छा सा कनकुना में एक कोस्टल पैलेट बोल के एक रेस्टोरेंट है। तो वेज और नॉन वेज में काफ़ी अच्छा खाना मिलता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो है वेजिटेरियन थाली खाया मैंने आज, वेज बहुत अच्छा था। इसके बाद बारिश, सुबह से शाम तक बारिश हो रही है। बारिश रुक रहा है, फिर शुरू हो रहा है, फिर रुक रहा है, कहीं गए जैसा नहीं था। लेकिन बहरहाल जो है मेरे को आज कहीं निकलना नहीं था, क्योंकि मैं जो है अभी आज थोड़ा रेस्ट लूँ, क्योंकि कल पूरा दिन सफ़र करना है। और उसके बाद मेरे को भी थोड़ा सा बहुत काम करना था, जो भी कुछ जो है वो काम थोड़ा फिनिश कर लिया। इसके बाद जो है मैं सोचा कि अभी क्या करते हैं, अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और काफ़ी जगहों पे सुनने में आया कि बारिश हो रही है। जैसे कि बेंगलोर में, केरला में बारिश हो रही है, हैदराबाद में बारिश हो रही है। और सुनने में आ रहा है कि कई हाईवेज में और इस पे काफ़ी सारे ट्रैफिक जैम 3-3, 4-4 घंटे बिकॉज ऑफ ओवर फ्लडिंग रिवर्स एंड ओवर फ्लडिंग डैम्स, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा है उसमें। आई थिंक it's better, the guys, those who are traveling in this monsoon season, especially going for holiday through extreme areas, but choose your route. Try to be careful and check the weather out before going, because we are coming towards the end of the monsoon now. Another month's time, I think we'll have the monsoon coming to an end. So this is its. I guess it's a peak period. Monsoon. Like if you had looked up, आप देखे होंगे न्यूज़ पे, मनाली, उत्तराखंड जो है कश्मीर के तरफ, तो सुनने में आ रहा है तो काफ़ी जो है रोड्स, काफ़ी ट्रक्स बह चुके हैं उसमें, लैंडस्लाइड्स में और फ्लडिंग में बारिश की वजह से। तो गाइस, दोज आर हॉलीडे के आप लोग मुसाफिर लोग जो है, जो फिरने जा रहे हैं इस वक्त, अपना डेस्टिनेशंस चूज़ करिए। मैं तो गोवा से 10 दिन में हूँ और यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा था मौसम और कंटिन्यूस बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन 1-2 दिन बारिश हुई, 26, 27। जिसके बाद फिर रात में शुरू हुई बारिश, फिर दिन में हल्का सा जो है लाइट से हो रहा था, लेकिन पूरा दिन जो है आपको धूप नहीं मिलने को मिल रहा है, क्यों? इट्स टोटली क्लाउडी है, पूरा क्लाउडी है और आपको सर्दी नहीं है यहाँ पर। एक चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर बारिश पड़ी तो भी सर्दी नहीं, इट इज़ देयर इज सम ह्यूमिडिटी कि यू डोंट नीड टू वेयर इवन जर्किन्स और फुल स्लीव्स, यू कैन जस्ट वेयर योर t-shirt, jeans or shorts or whatever, and it's a very nice weather over here. So by winding up from Goa is a memory for me of these 10 days, and I would like to keep these memories intact. It's been a very quiet, and I had travel solo, सिंगल ट्रैवल करा मैं, और मैं ज़्यादा अकेले ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। जो है उसमें कुछ काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं और काफ़ी फ़ायदे भी हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ खा सकते हैं, अपने टाइम पे सो सकते हैं, अपने टाइम पे उठ सकते हैं। आप किसी दूसरों के ऊपर कुछ भरोसा नहीं कर सकते कि उनके लाइक्स और डिसलाइक्स में क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो है आप बस पैक कर लिए, सफ़र में निकल गए 8 दिन, 5 दिन, 6 दिन अपना काम करें। आपका जो भी है एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन का जो भी है, लैपटॉप पर बैठ के वो आप कर सकते हैं। आपको जो है काफ़ी टाइम मिलता है उसमें करने के लिए। और मेरा ख्याल से ये अब काफ़ी लोग जो है यूट्यूब में आ चुके हैं 2025 में, और बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएट करने में भी जो है आपको काफ़ी सारे चीज़ सीखना पड़ता है उसमें,
कि एडिटिंग कैसा करना है, आपको सीन्स कैसा निकालना है, आपको शूट कैसा करना है, आपको कौन सा एंगल में जो है फ्रेम करना है, आपको कैमरा शाइनेस से जो है कैसा बिहेव करना है, कैसा बात करना है। तो पहले शुरुआत तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आई वॉज नॉट वेरी फ्री टू द कैमरा, बट देन अभी करते करते ओपन अप हो जाते हो। तो बहरहाल इट वॉज अ गुड 10-11 डेज, और देखते हैं फिर जो है मौका मिला तो फिर आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ फिर दूसरी जगह जाऊँ, क्योंकि काफ़ी सालों से तो गोवा आते जा रहा हूँ। एंड I don't think maybe next after 2 years or something I may look at some other destination. बोल नहीं सकता, जहाँ पर मौसम अच्छा है वहाँ निकल गए। लेकिन अभी तो आई नीड टू से दैट कि दिस इज द एज भाई, वंस योर चिल्ड्रन, उनकी शादियाँ हो गई, सब जो है अपने अपने मकाम पे आ गए उन लोग, और सब उड़ने लगते, तो आपको जो है अकेलापन महसूस होता। तो उससे अच्छा क्या है कि आप थोड़ा सा ट्रैवल करो बीच में, थोड़ा सा अपने आप को ऑक्यूपाई करो, कुछ चीज़ में आप जो है लगे रहो, कुछ काम में लगे रहो, कुछ करते रहो। क्योंकि बच्चे आज रहते कल चले जाते, जो है हर किसी की शादियाँ होती, तो हम जिंदगी भर तो हम लोगों के साथ नहीं रहते। तो उन लोगों के भी लिए जो है आगे ग्रो होना है, और वी ऑल्सो हैव टू सी एंड लुक अबाउट द कैरियर ग्रोथ। If somebody is going abroad or somebody is leaving the state with his family and leaving his parents, कि अपना पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं, तो ठीक है भाई, हम लोग रोक नहीं सकते। बस आपको मौका मिल रहा है लाइफ में, अगर आपको मौका अच्छा है, ये जो है आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। आज तो हम हैं, कल तो हम नहीं रहेंगे। बस यही कहना चाह रहा था मैं, क्योंकि उसके वास्ते मैं जो है उसके बाद मेरे को टाइम मिलता है या नहीं मिलता नहीं मालूम, जब बच्चे रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, उन लोगों का कुछ प्लान्स है फ्यूचर का। तो उसके वास्ते मैं बोला चलो 10 डेज़ का एक शॉर्ट हॉलीडे करके जो है मैं भी थोड़ा बहुत बीच में अपना स्किल्स को डेवलप करके जो है थोड़ा अकेला में रहने की जो है आदत कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा। और बस आपको ट्रैवल पसंद है, आपको डेस्टिनेशन चूज करना है, बस आप चले जाओ। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटा है। ज़िंदगी में जो है आपको कुछ करना है, एक उम्र के बाद तो आप ट्रैवल करिए। आप एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, आप जो है उसके बारे में सोचते रहेंगे, किसी की चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, तो ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आगे बढ़ना चाहिए। हर किसी के लाइफ में अच्छे भी होते, बुरे भी होते। मेरे साथ भी अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए, और मैं उसको लेके अभी जो है मैं भूलना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि हम सिर्फ दुआ दे सकते हैं बच्चों के लिए कि हम उन लोगों के साथ जुड़े रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमेशा के लिए उनके साथ जुड़े रहे। हम उनको बहुत जो है मुबारकबाद देते हैं, उनको जो है कामयाब, जल्द से जल्द कामयाब मिले और उनके सफ़र में। तो बस यही कहना चाहता। और मैं गोवा से जो है अभी मेरा भी सफ़र अब कल ख़त्म करूँगा, और इसके बाद फिर घर चले जाऊँगा। इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है आगे। तो आप मेरे से जुड़े रहिए और स्टे ट्यून विद मी, एंड गुड बाय टू गोवा फ्रॉम हियर। Definitely I look forward to come back. And guys, thank you for watching. Thank you for watching my episodes for whatever I've covered in Goa, and I'll keep bringing you new destinations and new discussions and new topics. But content has to be created, and I hope you like, share, and comment on your visions and suggestions. तो बस यही कहना था। So till then, take care and goodbye. Thank you for watching.